Dear friends, today God is with us. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आज हमारे साथ है He will never leave us or desert us. और वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा No नहीं। matter who does, God will always remain to give us a clear path forward. परमेश्वर हमें आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, So don't worry. इसलिए चिंता ना He करें। speaks to you today through Psalm 97:10. भजन संहिता 97:10 से वह आज हमसे बात The करेंगे। Bible says God preserves the life of His saints. वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता He delivers them from the hand of the wicked. और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। It's true. यह सत्य है। God is here today to preserve the life of His people. परमेश्वर आज यहाँ है कि अपने लोगों के प्राणों की रक्षा करे। You might be going through various taunts and various threats from the wicked people. आज हो सकता है आप दुष्ट लोगों के तानों से होकर गुजर रहे हैं An attack on your own life. और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी हमला You might be है। a servant of God, आप परमेश्वर के दास हो सकते हैं surrounded by people writing threats to you to kill you and your family. और आप घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो आपके परिवार के लिए धमकी देते हैं ताकि आपको खत्म You कर दे। might be getting threats from your own relatives हो सकता है अपने परिवारों से ऐसी धमकियां आपको मिल रही है who are doing witchcraft against your family जो आपके खिलाफ में तंत्र मंत्र कर रहे हैं because you love Jesus. क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते But हैं। my friends, लेकिन मेरे दोस्तों, God is moved for you परमेश्वर आपके लिए चलन करता है as He wants to be the one who preserves the life of His saints, His people. और वह तो आपके लिए वह है जो अपने दासों और भक्तों की प्राणों की रक्षा करता He will है। preserve your life. वह आपके प्राणों की रक्षा करेगा। Don't worry. चिंता ना करें, No threatening can touch you. कोई धमकियां आपको छू नहीं He सकती। delivers His people from the hand of the wicked. दुष्टों के हाथ से वह अपने लोगों के प्राणों को बचाता है। King Saul in the Bible got so jealous of David's victories and his fame. दाऊद के जय की वजह से बाइबल में राजा शाऊल उससे जलन रखता था And he wanted to destroy David before he would become king instead of Saul. और शाऊल के जगह में वह राजा ना बन जाए इसलिए वह उसको नाश करना चाहता Because था, all the people were shouting his name. क्योंकि सभी लोग दाऊद का नाम लिया करते थे And he thought David is going to replace him. और वह सोचता था कि दाऊद उसके स्थान पर बैठ In जाएगा। your job also, people might be threatened by और हो you. सकता है आपकी नौकरी में भी लोग यह सोचते हैं कि कहीं आप उनके स्थान पर ना बैठ जाएं। In your church, people might be threatened by you. और हो सकता है कलीसिया में भी लोग यही सोचते हों आपके विषय में They might try to finish you off. और वो चाहते हैं कि आपको रास्ते से हटा दे या अलग कर दे। David trusted in God and clinged on to him for his life. परंतु दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने जीवन के लिए परमेश्वर से जुड़ा रहा। Saul came into the house of David to find him and kill him. शाऊल दाऊद के घर पर आया ताकि ढूंढकर उसे खत्म कर दे। God helped him through his wife to escape. परमेश्वर ने उसकी पत्नी के द्वारा उसे बचाया Saul chased him from city to city to try to find and kill him. और शाऊल एक शहर से दूसरे शहर उसका पीछा करता रहा ताकि उसे ढूंढकर उसे खत्म करे। The place where David was taking refuge, people betrayed him and tried to hand him over to Saul. और जिस स्थान पर उसने शरण ली लोगों ने उसे धोखा दिया और उसे पकड़वाना चाहा। And finally, in the cave where David was staying, Saul tracked him to come and kill him. और अंततः जिस गुफा में दाऊद छुपा था शाऊल ने उसे ढूंढ लिया। But even there, God made him escape from the hand of Saul लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने शाऊल के हाथ से उसे बचा लिया। and instead handed the life of Saul in David's hands, लेकिन उसके बदले में शाऊल के जीवन को दाऊद के हाथ में दे दिया, where David found Saul sleeping. जहां दाऊद ने शाऊल को सोते हुए पाया। God will hand over the enemies finally into your own hands, परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपके हाथ में कर देगा, where they will come and call you a holy जहां पर person. वे आकर आपको पवित्र जन कहकर पुकारेंगे। We have done all we can to destroy you, हमने वो सब कुछ किया कि आपको नाश कर दें, but nothing has prevailed. लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। That will be the preservation of our Almighty और God. यही तो हमारे परमेश्वर के द्वारा बचाया जाना होगा। Come and hide in Him and pray with me. आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और उसमें छुप He will जाएं। rescue us. वह आपको बचाएगा। Lord, our rescuer, परमेश्वर हमारा बचाने Our वाला, fortress, हमारा गढ़, our salvation, हमारा उद्धार करता, our immovable rock. कभी न टलने वाली We चट्टान। hide in you, हम Lord. आप में छुप जाते We हैं। pray to you. हम आपसे प्रार्थना करते You हैं। are the one who rescues and delivers तू ही तो us. हमें छुड़ाता है और हमें बचाता है। Lord, you see the mighty hand of wicked people. आपने दुष्टों के हाथों को देखा है, They're coming against वो us. हमारे खिलाफ आते हैं। Where will we go for refuge? हम छुपने
ढूंढने के लिए कहां पर Who जाएं? will save us? कौन हमें बचाएगा? You have to save us, आपको Lord. ही हमें बचाना है। As you promised today, जैसा आपने आज वाचा बांधी है, stand for your children. अपने बच्चों के लिए खड़े हों। Your love is so great for them. आपका प्रेम उनके लिए कितना महान है। You will fight for them. आप उनके लिए युद्ध You will लड़ेंगे, deliver them आप उन्हें बचाएंगे from the betrayal of people who hand them over to their उन enemies. लोगों के धोखे से जिन्होंने उन्हें फंसाया है। Lord, the enemies who search for them परमेश्वर दुश्मन उन्हें ढूंढ रहे हैं to kill them, ताकि उन्हें नाश करें, search for some way to destroy और them. किसी तरह से मौका ताकि उन्हें नाश You will करें। never give them away, Lord. आप उन्हें कभी रास्ता नहीं देंगे परमेश्वर। You will never allow them to be आप touched. अनुमति नहीं देंगे उन्हें छुए जाने के लिए। Thank you for preserving your children and their family. धन्यवाद अपने बच्चों और उनके परिवार को बचाने के लिए। Thank you, Lord, for showing your power through this. धन्यवाद परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए, Let your name be glorified through ताकि this. आपका नाम ऊंचा किया जाए Let all the enemies come into peace with your और children. हर एक दुश्मन आपके बच्चों के पास शांति के साथ In आए। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे।